بتا تحریک کے سینئر قائد طاہر صاحب، اکمل الدین فاروقی صاحب، منجو صاحب، اسماعیل صاحب، بزرگوں، دوستوں اور پردے میں سننے والی میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتخابات کا ماحول ہے اور انتخابات بلکہ وہ فریضہ ہے جو ہر مسلمان کو اپنا حق اور اپنی طاقت کا استعمال کرنا ہوگا، لیکن گزشتہ 15 سال سے آپ نے ایک ایسی طاقت کو اپنی طاقت بنایا، وہ طاقت اپنی طاقت کو ایک طاقتور بنانے کے لیے اس مسلمان نے اپنا قیمتی ووٹ دیا، لیکن اس حالات میں 15 سال سے گزشتہ 5 سال سے اس شخص نے جیت کر آپ کے درمیان میں نہیں رہا۔ لیکن کچھ حالات ایسے ہیں کہ دنیا میں اگر اپنی طاقت کو اگر استعمال کرنا ہو تو بلکہ اپنے ضمیروں کو پاک کرنا ہوگا اور اپنے ارادوں کو اس طرف اور اپنی سوچ کو اس طرف لے جانا ہوگا جس طرح کہ ہماری قوم کا رہبر کون ہے، ہماری مظلوم قوم کی حفاظت کون کرتا ہے، ہماری قوم کی رہبری اور ہمارے قوم کے مسئلے کون حل کر سکتا ہے۔ بس آج وہ بات آپ کے درمیان میں آج ہر مسلمان کے دماغ میں آ چکی ہے کہ ہم کو ماحول بدلنے کے لیے خود کو بدلنا ہوگا۔ گزشتہ سالوں سے جو ہوا اب نہیں ہوگا، کیونکہ اس مظلوم مسلمان جاگ چکا ہے۔ آج نہیں بلکہ پرانے شہر میں نہیں بلکہ ہندوستان کے کونے کونے میں آج ماحول کو بدلنے کا ارادہ آ گیا ہے۔ تو آج کی تاریخ میں جس طرح مسلمان بے بس ہے اور اس کے مسائل حل ہونے کے لیے آج گلی گلی میں مسلمان بے بس ہے، لیکن آج مجلس بچاؤ تحریک ہمیشہ آپ کے درمیان میں رہی اور ہمیشہ آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں رہی، اور ہمیشہ مجلس بچاؤ تحریک بلکہ ایک مظلوم مسلمان کی طاقت بنی اور جہاں اقتدار بھی رہی، لیکن مجلس بچاؤ تحریک کے جب دفتر پہ مسلمان آتا ہے کچھ کام لے کے تو اللہ نے اس مسلمان کی ضرورتیں اور اس مسلمان کی تکلیف دور کرنے کے لیے مجلس بچاؤ تحریک کے ادنا ایک کارپوریٹر کو آپ کے درمیان میں رکھا، اور پیپر گواہ ہے، سارا آج پرانا شہر گواہ ہے کہ آج مجلس بچاؤ تحریک کا منشور کیا ہے، آج مجلس بچاؤ تحریک کا ارادہ کیا ہے، بلکہ مجلس بچاؤ تحریک کا وہ ارادہ ہے کہ مظلوم مسلمانوں کی خدمت کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنا۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ مجلس بچاؤ تحریک کا ایک کارپوریٹر، بلکہ آپ کس طرح مسلمانوں کے پرانے شہر میں حالات ہوئے، اس طرح جو مسلمان مظلوم مسلمان کو پولیس نشانہ بناتی تو وہاں پر ڈھال بنتے ہوئے مجلس بچاؤ تحریک آپ کے درمیان میں رہتی اور وہ مظلوم مسلمان کی آواز بن کر بلکہ پی ایس ہو یا جیل ہو تو اس کی آواز کو عوام میں لا کر اور اس پولیس والوں کے جو توپے ہوتے اور ناجائز مظلوم مسلمان کو گرفتار کرتے تو مجلس بچاؤ تحریک وہاں پر موجود ہوتی اور وہ مسلمان کو اپنے حق کی بجائے اپنا اس کا حق دلاتے ہوئے اس کو رہا کرتی۔ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں مسلمانوں کہ مجلس بچاؤ تحریک کا مقصد کیا ہے۔ آج ہندوستان کے کونے کونے میں کہ آج ایک سازش رچائی جا رہی ہے اور وزیر اعظم بننے کی ایک سازش، وہ سازش ہے بلکہ مسلمانوں کو اپنے ہندوستان میں اپنے پیروں کے تلوے چٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب کے صدقے تو بلکہ دنیا کے کونے میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ وہ مسلمان کو اپنے پیروں میں رکھے، بلکہ مسلمان جب تک قرآن اور سنت کی روشنی پر چلے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کا سر بلند رہا ہے اور سر کٹ گیا لیکن اس کی شان باقی ہے، اس کا سر اونچا ہے۔ لیکن آج ایسی سازشیں رچائی جا رہی ہے کہ ہندوستان میں ایک بی جے پی جو اس نے اپنے ملک میں طاقتور بننے کے لیے نریندر مودی کو وزیر اعظم بنانے کی
साजिश रचाई जा रही है, लेकिन अल्लाह के करम और फजल से हिंदुस्तान का मुसलमान, कोने कोने का मुसलमान, बल्कि सेकुलर जमात को वोट दे देगा, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं देगा। आपको मालूम होना चाहिए मुसलमानों कि आज हमारे मसले कितने हैं। आज पुराने शहर में मैं आपको गली गली के रास्ते बताना चाहता हूँ, और उससे पहले मैं आपको यह हकीकत रखना चाहता हूँ कि आज असेंबली में आज मुसलमान की वो आवाज नहीं है जो गाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान थे। आज वो हिंदुस्तान के कोने में, पुराने शहर के कोने में आज वो ताकत नहीं है जो मजलूम मुसलमानों के सीनों में गोलियां चलते तो गाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने एसीपी डीसीपी के रिवॉल्वर को फेंक देते। आज वो हमारे सामने क़यादत नहीं है, लेकिन आज हिंदुस्तान के कोने कोने का जो संघ परिवार है आज वो हिंदुस्तान के हैदराबाद को निशाना बनाना चाहता है। हिंदुस्तान में मालूम है कि कोई अपने इक़्तिदार के लिए मुसलमान मजलूम मुसलमानों के खूनों से खेल लिया, लेकिन उससे कुछ नहीं हो सका। लेकिन आज हिंदुस्तान के कोने में से लेकर हैदराबाद के कोने में आज मुसलमानों को एक शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन आज मुसलमान की ताकत जिसके हाथ में है, इक़्तिदार जिसके हाथ में है, आप उसको खामोशी अख्तियार करते हुए देख सकते हैं। और मुसलमान के आलिम इकराम आज जेलों की सलाखों में, बताइए हैदराबाद किस तरह सलामत रहेगा? हैदराबाद जब सलामत रहेगा इंशाअल्लाह ताला जो सारे गाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान, जो फरतुल्लाह खान की नाम की चगल में सारे गाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान की तरह अगर असेंबली में होगा तो इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने का मुसलमान सेफ रहेगा। ये बात आपके दरमियान में इसलिए रख रहा हूं कि आने वाले दौर को याद रखो, आने वाले नजरिए को देखो, लेकिन आज हमारे पास क्या कमी है और आज हमारा मुसलमान किस तरह बेबस है। आप मैं ये जानना चाहता हूं, क्या मुसलमान आज हिंदुस्तान के कोने कोने में माहौल बदल रहा है? क्या हिंदुस्तान के इस कोने में एक छोटे से हैदराबाद में माहौल जो 20 साल से माहौल है, क्या उसको बदलना नहीं चाहते? बदलना चाहिए, इसलिए बदलना चाहिए कि आज पुराने शहर के इस याकूतपुरे के गलियों का दौरा हुआ है, बल्कि एक महीने से आज मुसलमानों के दरमियान में मजीदुल्लाह खान फरत है, और उस दरमियान में ऐसे ऐसे हादसे हमें भी दिख रहे हैं कि मुसलमान किस तरह आज बेबस है। आज मुसलमान के हाथ में क्या है और मुसलमान किस तरह जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन वही मुसलमान के एक वोट से जब एक एमएलए बनता है तो उसकी ऐशो आराम की जिंदगी कैसी है आपके दरमियान में रखना चाहता हूँ। यह हकीकत इसलिए आपके दरमियान में रखना चाहता हूँ कि यह हकीकत बात है कि आज का माहौल इस तरह गरीबों को कुचल दे रहा है, बल्कि उन्हें अपने इस्लाम की पेट की भूख के लिए इस्लाम को बदल लिया जा रहा है, गिरशन बन जा रहे हैं। जाके देखो संगारेड्डी और बल्कि ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ मुसलमान अपने पेट की खातिर अपने ईमान की तरफ रुझाव नहीं हो रहे हैं, और जहाँ लोग तबलीग करने जाते हैं तो उनसे एक सवाल होता है कि हमारे पास पुराने शहर में क़यादत है, लेकिन वो क़यादत आज गाँव गाँव में बल्कि संगारेड्डी हो या बल्कि यहाँ पर महबूबनगर हो, कोई ऐसे हलकों में कुछ नहीं देखे जा रहे हैं जहाँ प्यासे भूखे हैं, लेकिन वो तो बहुत दूर की बात है। बल्कि आज मैं बताना चाहता हूँ याकूतपुरे का माहौल क्या है मुसलमानों। आज मुसलमानों याद रखो, एक गरीब मुसलमान बच्चा स्कूल की तालीम हासिल करने के लिए तड़पता है, लेकिन उसके बाप की हैसियत नहीं होती कि उन्हें कोई बच्चे को स्कूल में शरीक करे। आज मुसलमान माँ अपनी एक घड़े पानी के लिए बल्कि बुर्का डाल लेते हुए उसी एक गली से दूसरी गली से पानी भर के लाती है, लेकिन आज बड़ी अफसोस की बात है ये क़यादत क्या कर रही है। आज मुसलमान माओ बहनों आज अपनी ऐसी हालात माशी हालात में तकलीफ में है, बल्कि उनकी शादियां नहीं हो रही है। उनके बाप जिस तरह मेहनत करते हैं एक लकड़ी की टाल पर अगर लकड़ी फोड़ता है तो आज का जीना कैसा होगा बताइए। बल्कि आज 100 रुपए अगर इंसान कमाता है तो वही एक वोट की खातिर उस एमएलए ने करोड़ों रुपए कमाता, लेकिन जो मुसलमान एक वोट देता उसके हालात आज क्या है बताइए। एक हालत बल्कि उसको एक टाइम का सही खाना नहीं मिलता, ना उसके मासूम बच्चे को जैसे एक तालीम सही पक्ति मिलती डाला जाएगा, और उसके बाद मुसलमान मासूम बच्चों के लिए एक स्कूल बल्कि हर बुध पर
एक प्राइमरी स्कूल कायम किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ। सलमान माँ भले जो देश सीने जा रही है उनको देश सीने नहीं जाना होगा, बल्कि उस सिलवाई सेंटर में डाली उनको सिलवाई सेंटर डाल कर दिया जाएगा। खान साहब को कामयाब करना होगा, इसलिए कि आज फरतुल्लाह खान साहब अल्लाह को हाजिर दिलाते हुए आवाम की आवाज सुनकर आपके दरमियान में है, और इस आवाम की दरमियान में आप आवाज बनकर इनकी असेंबली में आवाज पहुंचाइए तो सारे पुराने शहर में आपको याद होगा, सारे पुराने शहर में एक आवाज होगी और कोई गरीबी नहीं होगी, ना कोई माँ गरीब होगी, ना कोई बहन गरीब होगी, ना कोई बुजुर्ग गरीब होगा, ना कोई बच्चा तालीम हासिल करेगा और बच्चे को उस तालीम दायरों में और मुफ्त तालीम दिया जाएगा, कोई उसका नहीं होगा। गवर्नमेंट से मजीदुल्लाह खान ने यह ऐलान कर चुके हैं कि हर बूथ पे एक स्कूल कायम करेंगे, बल्कि हर बूथ पे एक बुक और जूनियर कॉलेज आपको कायम किया जाएगा। जूनियर कॉलेज पुराने शहर में नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से जूनियर कॉलेज को कायम किया जाएगा। और अब्दुल्ला खान का ये अज़म है, जिस तरह मोहम्मद अब्दुल्लाह खान ने अपने आप को वक्त कर दिया तो अब्दुल्ला खान ने ऐलान कर दिया कि मैं अपने आप को इस बाकी जिंदगी को आपके सामने वक्त कर डालूंगा और इस मजलूम मुसलमान बच्चे की आवाज बनूंगा और मजलूम मुसलमान की ताकत बनूंगा। ये मजीदुल्लाह खान का अज़्म है, ये मजीदुल्लाह खान का अज़्म है कि वो मासूम बच्चे को मैं हक दिला के रहूंगा। और जिस तरह मुसलमान आज बेबस है, उनकी बेबसी को दूर करने के लिए मजीदुल्लाह खान बरत आपके सामने है। और मजीदुल्लाह खान ने कहा कि अल्लाह को हाजिर जारी डालते हुए मैं कौम की खिदमत करने के लिए आया हूँ। जिस तरह मेरे वालिद साहब खिदमत करते थे मैं भी उसी तरह खिदमत करूंगा और खुदा की कसम यह करेंगे। और ये मजमा कह रहा है कि फरतुल्लाह खान कामयाब हो गए, खुदा की कसम अल्लाह का रहेगा और अल्लाह पूछेगा जब फरतुल्लाह खान को कामयाबी दोगे तो इंशाअल्लाह ताला के पानी तक, बल्कि माशी हालात से लेके घर की दीवार तक, घर के छत तक मुसलमान हुकूमत हिंदुस्तान की हुकूमत के खजानों में से निकालेगा। फरतुल्लाह खान जिस तरह खान जमीलत मोहम्मद अल्लाह का काम करे उसी तरह काम करेंगे। यार जिंदा सबर